This conference will now be recorded. Okay, yes, thank you. I forgot it. Yeah, correct. So we try to analyze the past collected data, and we try to predict the future. How we were able to predict the future from the collection of past data? We combined it with the current trend. But friends, in your all case, quarterly result were so much important, because when you learned, there were no quarterly result. You have received annual result. So now you are seeing every day new quarterly results are updating, and these quarterly results are going to set the trend for this year. See, till now you were just predicting ऐसा होगा, DMart का result ऐसा आएगा, Bajaj Finance result will be like this. You were trying to predict. Now here they are with their real result. Got it? So I'm very happy. Many of you have already collected the quarterly data, inserted in your existing spreadsheet, and yes, you were able to know how will be this year from that particular quarterly result, right? So today we are going to try an experiment, right? We are going to take one particular company, put it in your figure, in your data, and we will try to predict, right? Some real type of data. So who will try? Tell me. I have your spreadsheets here, your behavior spreadsheet. Whose company's result have announced, right? For example, many of you have done work. Let me open this spreadsheet of behavior. All right. So here was Relaxo, which we just did for the practice. Adnani ji did practice on UBL, Supreme Industry, IRCTC. Ashish did practice on PVR, Rajendra Bhai on TCS, Wonderla. So now you would be knowing that on the company where you were doing practice, now your company has announced current result. So let us put that particular quarterly result in your existing spreadsheet. So kindly tell me, out of all of these companies, whose result have announced, and we will put that data live. Yes, please. बताइए आप में से किसका रिजल्ट आ चुका है? भी आपका तो ध्यान होगा ही. आपने जो कंपनी पे इतना मेहनत किया था, इफ दैट कंपनीज रिजल्ट हैव केम. राजेंद्र भाई, टीसीएस. संजय भाई, यूपीएल का रिजल्ट नहीं आया शायद. आ गया संजय भाई? मेरे को ध्यान नहीं है. आई एम नॉट अवेयर राइट नाउ दैट यूपीएल रिजल्ट हैव अनाउंस्ड और नॉट. आई थिंक सो इट हैजंट कम. यस संजय भाई. या आईटीसी, आईटीसी का भी नहीं आया है. नो नो नो, राइट. टीसीएस का आ गया है. देखो अभय भाई, राजेंद्र भाई का टीसीएस का रिजल्ट आ गया है. तो लेट अस ट्राई फॉर टीसीएस, है ना. यस सुनील भाई, डीमार्ट का रिजल्ट आ गया है. बोलो आप सब में से कौन ट्राई करेगा? किसका डेटा डाले हम लोग? आप बताओ. उसका डेटा हम लोग एडजस्ट करते हैं. चलो, मैं खाली उंगली हिलाऊंगा और आप मेरे को गाइड करोगे मैं क्या करूं. राइट. यस. हु इज द पर्सन whose company's result have announced and he will try to insert it? Bajaj Finserv. यस. बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों का कल आया ना रिजल्ट. या राजेंद्र भाई ट्राई करें टीसीएस पे. यस राजेंद्र भाई, व्हाट डू यू से? हैव यू इंसर्टेड द डेटा ऑफ टीसीएस? No, I haven't, sir. ओके, तो करें. We can, yes. ओके. कैन आई मेक यू प्रेजेंटर और आई शुड Sir, इंसर्ट you will द have. डेटा? आप कीजिए ना सर. I'll see. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो, Thank you, sir. कौन सा साइट ओपन करूं मैं?
डेटा लेने के लिए स्क्रीनर, BSc India using. बीएससी इंडिया, चलो हाँ बीएससी इंडिया। मुझे लगा आप भूल गए होगे बीएससी इंडिया, शायद स्क्रीनर ब्रीनर पे ना चले गए हो। Sir, I have not forgotten everything that you taught, sir. Anything. Very good, very good. So now what I should do? Yes, guide me please. बस company. Company. Okay, I have written the Financial. company. Financials. Yeah, here is the TCS. We will go to financials. Yes, sir. Financials. Financials. Results. Yes. Okay. And we can go for annual or quarterly. If it is quarterly, Annual quarterly. result तो कब का आ गया था? Okay. Now we have yes, to sir. put this quarterly result. Quarterly, yes, sir. This quarter, yes. So from where we will have this data? From here? From here, yes, quarterly. Okay. Who will consolidate. correct Rajendra bhai? Consolidated. Yes, consolidated. You are right. But we will not take data from here, Rajendra bhai. Okay. Let me throw this question to all participants. बोलो Corporate announcement. Yeah. Corporate announcement. हाँ, किसने बोला corporate announcement? अमोल. Yes, sir. अमोल corporate announcement में जाएंगे ना? हाँ सर. क्यों पर corporate announcement? क्योंकि डेटा तो इधर भी है. हाँ वहाँ पे भी है बट रीजन एग्जैक्टली नहीं पता सर क्यों, बट वहाँ पे एक्चुअली लेटेस्ट जो भी चीजें रहेंगी कंपनी से रिलेटेड वो अपडेट हो जाती है वहाँ पे. ओके. पीडीएफ के फॉर्म. अच्छा, रीजन नहीं पता है आपको तो मेरे को बोलना पड़ेगा, है ना? See, here data are very easy to take. You can take from here, but still I have suggested you not to take data from here. We will take latest result data from corporate announcement. Why? Because here management comment are not there, and you need management comment. आपको देखना है कि TCS का मैनेजमेंट क्या बोलता है. What they are expecting from market in coming time. Here there are no comments, so that is the reason you should go to corporate announcement. Rajendra bhai. Yes, sir. Thank you, sir. है ना? Please remember, you will need corporate announcement because otherwise you will not able to know that what are their expectation. है ना? Yes, sir. Yes, sir. Now see, आप अगर कोई भी और कोई कंपनी में हो छोटी मोटी जिसपे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, ऐसी कंपनी के मैनेजमेंट कमेंट भी कोई काम के नहीं, right? But when management of TCS picks something, management of Infosys picks something, if they give some guidance, people listen it carefully. उनको पता है these are trust people, इन पे भरोसा किया जा सकता है ये जो बोलते हैं, बराबर ना? Yes, sir. Okay. Right. चलो, corporate announcement. I clicked. Now what should I do, Rajendra bhai? You can go through results, the category. Okay. देखो क्या करें, सीधा Control F RESULT, बराबर है? Yes, sir. So here it is result. I will click this result. Okay. आपको दिख रहा है राजेंद्र भाई कि थोड़ा बड़ा करो? नहीं, very clear. Yes, clearly, sir. I can see. So now where I will go? See, from here you will be able to know, Rajendra bhai, that they have announced 5 rupees dividend for this quarter. Yes, sir. हाँ. हमें बाहर से नहीं पता चलेगा, बराबर? हाँ. So yes, I have TCS share. I will be happy. Okay, चलो ये क्वार्टर का तो पैसा आ गया. They declare dividend every quarter. क्योंकि अभी कंपनी को एक्सपांशन के लिए पैसे का जरूर नहीं है. So what company do? As they make profit, they distribute it. Right? Yes, sir. Okay, so we are aware about their dividend. I am down scrolling it. Till where I will down scroll? These are all companies of TCS. They are having around 53 companies. And the result which you are seeing is the result of all of these 53 companies. Yes. Right? In different part of the world. Consolidated data जब आप देखते हो तो सब आ गया. See, here is there
I can see, I hope you are also able to see. Here Yes, it's sir. written consolidated data. So Yes. yes, Hmm. let us check this result. Hmm. Okay, so this is their total income and this is their revenue, Yes, right? sir. We will take revenue part. Okay, Mhm. Yes, sir. so ये June 30, June 30, this is Mhm. March 30. ये Yes, sir. चार जो डेटा है उसमें डिफरेंस बता सकते हो राजेंद्र भाई? What is June, March, June and March? Yes, sir. June 30, 20919 and 2020, the results are revenue is almost identical. Okay. So these are previous year June result, that is quarter one, and these Yes. are this year quarter one result, Yes. right? Yes. Yes, sir. Okay. And what is this March? March would be fourth quarter, sir. March. This is sorry. This is the first quarter. This is the fourth quarter Previous of one. 19. Yes, previous year. Will give every time जब भी आपका latest result आता है, they are going to give previous quarter result also. So Yes, let's see, you can even compare in the line. 39,000 तो जून का है, हाँ. मार्च में 41,000, जून में 39,000, Yes, right? sir. So it's all symmetric. Okay. Yes. And what is this first line? March 1 lakh, 1.6 lakh crore. That is the annual result क्या of 1920. Annual result. Okay, so this is their full year result. This is Yes, quarterly. full. मैं क्या करूं अभी? ये फिगर ले लूं 38322. चलो आपके डेटा में मैं इंसर्ट कर देता हूं. Okay. Yes, sir. Here is your data. Let me see, where is TCS? Here it is. Okay. Yes, sir. What we will do? These were your total past data. Now, Yes, sir. here we do not have any column of quarterly result. Do we have? No. So what we will have to do? We will have to create, Rajendra bhai. हम Yes, क्या sir. करेंगे? इधर create करते हैं quarterly result, right? Yes, sir. I will write down quarter one here. Now Yes. I will write down sales. For which year? 2000, 2020. 20, 21, 2020. Yes. दोनों साल का आ गया. Here I will write down growth. Right? Hope you are able to see. कि थोड़ा बड़ा करूँ इसको? नहीं, it's perfect look, sir. है ना? Okay. Whatever suits you, sir. Okay. So let me now check the data. 38322. Yes. 38322. And previous year data was 38172. Yes. So this is the way we are putting the result. Yes, sir. 38172. I hope I have done right thing. 38172. Yeah, correct. So now how will I calculate growth, Rajendra bhai? कैसे गिनूं? This in that current divided by previous one. Correct, sir. Is equal to current year divided by previous year. Bracket close. I want 1 divided by 1. 4. 1, sir. पक्का 1? Sir, it is for 1 year, na? Correct. Absolutely correct. अब सही हो. 1 divided by 1. Bracket close minus 1. So here is your growth. I will convert it into percentage. So your company have grew by 0.4%. Yes. Is it a good growth? I mean, looking at the COVID situation. Correct. See, actually, this is not good growth. But see, considering COVID, yes, it is good growth because what you were expecting, let me see. आपने क्या expect किया था? D15 में आपने क्या डाला था? What was D15? Here it was. See, you have expected 7% growth. यहाँ पे आपके डेटा में आपने 7% estimate लिया था. But this 7% was
in respect of without corona, right? Yes. As there was corona, there was a fear in the market, and even we were expecting that we may see 5 to 10% fall in TCS business. But thanks God, here हाँ. TCS were with flat business. इसको हम क्या Yes. कह सकते हैं? Muted growth, है ना? Yes. Yes, sir. या आप कभी भी टीवी में देखो तो वो बोलेंगे it has got a muted growth. But हाँ. muted growth in a muted economy, it's all right. अगर Yes. TCS का धंधा आधा टका आया तो बाकी की छोटी कंपनियों का क्या होगा राजेंद्र भाई? Yes, sir. है ना? हाँ, yeah. मर जाएगी. Yes, yes. They cannot survive. Yeah. Now see GDP growth this year world का GDP growth -3% है. हाँ. बराबर है? इंडिया का Yes, sir. GDP ग्रोथ 1.9% एस्टिमेटेड है और आपका हाँ. TCS का भी रिजल्ट वैसा ही आया है, आधा टका. Yes. तो हियर यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा अभी राजेंद्र भाई? Yes, sir. Sales figure has to be एस्टिमेट आपने rectified. 7% लिया था. नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू? Point, we have to revise the percentage. रिवाइज. करेक्ट. देखो ऐसे रिवाइज करो, राइट? नाउ व्हाट यू वर डूइंग, यू हैव जस्ट एस्टिमेटेड, पर क्वार्टरली रिजल्ट आपके एस्टिमेशन को पक्का कर देता है. Yes, बराबर sir. की नहीं? Yes, इसी sir. प्रकार से आगे बढ़ो, राइट? अभी हम यहाँ पे फिगर नहीं चेंज कर रहे हैं, हम पहले Yes, ये sir. सारे फिगर डाल देते हैं, राइट सर? हाँ. Yes, sir. तो आफ्टर सेल्स व्हाट आई शुड राइट डाउन? करण राज ने तो पूरा काम किया हुआ है. करण राज क्या लिखो? सेल्स के बाद में कौन सी फिगर डालू बताओ? Profit है. नहीं, प्रॉफिट सीधा मत डालो. गड़बड़ कहाँ है वो भी पता चलनी चाहिए ना हमें. और 2-3 डेटा डालो. और क्या डालो? expenses. Expenses. Very good. You are right. Before expenses, we can have the data of finance. आप डाल सकते हो. अब TCS में डालने का जरूर नहीं है. We know it is a very low debt company. तो यहाँ पे जाने दो, राइट? हम डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपेंस फिगर डाल देते हैं. So what are the cost of TCS? 29274. Let me put it down. 29274. And last year was 28952. Oh, sorry. 28952. Now it's a simple control C, control V. सर धंधा आधे टके से बढ़ा, कॉस्ट 1% से बढ़ी, ऐसा क्यों? Expenses are more. Every time expenses are growing to increase by around 5% every year. उतना Okay. तो महंगाई बढ़ता है, तो चाय वाले का भी खर्चा बढ़ेगा, रेंट बढ़ेंगे, सब चीज बढ़ेगी ना राजेंद्र भाई. Yes, बट sir. स्टिल दे वर एबल टू मैनेज इट. खाली 1% से बढ़ा है तो इट्स गुड. बराबर है, इन्होंने सैलरी भी बढ़ाई होगी. अब जब आपने हाँ, ये yes. डेटा बताया था, एट दैट टाइम यू हैव रिटन देयर मेजर कॉस्ट. नहीं लिखा है ना? No, sir. हाँ, वो डेटा एक डाल देना पड़ेगा, राइट? Okay. हाँ. तभी तो आपको Yes, पता yes. चलेगा व्हाट इज देयर मेजर कॉस्ट. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर हैविंग 50% कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, आईटी कंपनियों में वो खर्चा ज्यादा होता है. Yes, sir. एम्प्लॉयज के सैलरी अगर इन्होंने 10% से बढ़ाए होंगे तो इनका खर्चा भी बढ़ा होगा, राइट? Yes, sir. बट हियर वी कैन सी दे वर एबल टू मैनेज इट वेल, सो दैट्स गुड Yes. फॉर TCS, राइट? Yes. नाउ वी विल राइट डाउन हियर प्रॉफिट. ओके, चलो फटाफट प्रॉफिट लिख देते हैं हम लोग. व्हाट इज देयर प्रॉफिट? किधर है राजेंद्र भाई? वेयर इज प्रॉफिट? Profit is दिस वन प्रॉफिट बिफोर टैक्स. no after tax, sir. Net profit. Yeah, very good. After tax. This is total tax. This is profit for the period. Yes. Right? Yes, sir. 7049 8153. Let me write. 7049. क्या था? 8153. Yeah, 8153. 8153. Now let me calculate. Okay. Their profit have fallen by 14%, राजेंद्र भाई. Why this thing happen? धंधा तो उनका आधा टका से बढ़ा, फिर प्रॉफिट क्यों 13% से गिर गया? Why? Expenses
expenses because बढ़े. their expense cost have increased. Yes, sir. Right. Now tell me, if their business would have grown by 10%, but cost would have grown by 5%, तो किधर इफेक्ट आता? Yes, sir. Profit पे. प्रॉफिट पे आता कि नहीं आता? Yes, अब sir. ये तो टीसीएस की बात है. अगर आपने कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी में निवेश किया है who is having high debt, वो ये मंदी के समय पे कम कॉस्ट नहीं कर सके, खर्चे नहीं घटा सके, तो ये साल आपकी वो कंपनी ने क्या किया होगा? लॉस. Yes. राइट. टीसीएस का प्रॉफिट 14% से गिरा है. योर दैट पर्टिकुलर कंपनी विथ नॉट अ गुड मैनेजमेंट प्रॉफिट वुड हैव फॉलन बाय 50%. इसीलिए नाउ प्लीज रिमेंबर वेयर यू फोकस्ड इनिशियली व्हाइल डूइंग रिसर्च. आपने क्यों कोई भी कंपनी नहीं पकड़ा? व्हाई यू सिलेक्टेड टीसीएस राजेंद्र भाई? ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन, है ना? Yes, sir. जब मैं हर कंपनी में रिसर्च करता था, एक टाइम था मैं जितनी भी कंपनियां सेंसेक्स में, आई यूज्ड टू डू रिसर्च ऑफ ऑल ऑफ दोस कंपनीज, और मैं पागल हो जाता था. मेरे को लगता था यार ये कंपनी अचानक प्रॉफिट कर रही है, अचानक लॉस कर रही है, ऐसे तो मैं जिंदगी में कभी नहीं कमाऊंगा. बट आई वाज नॉट नोइंग दैट आई वाज सपोज्ड टू फोकस ओनली ऑन क्वालिटी स्टॉक. Yes, sir. राइट. सो नाउ व्हेन आई इंक्रीज्ड माय फोकस, मैंने मेरा बाइनोकुलर सेट किया सिर्फ तगड़ी कंपनी को देखने का. अब मैं हमेशा रिलैक्स फील करता हूं. मुझे पता है चलो टीसीएस का प्रॉफिट गिर के लिमिटेड गिरेगा, नहीं तो 3i इन्फोटेक होती तो लॉस कर दिया होता उसने. बराबर कि नहीं सर? Yes, नाउ sir. वन मोर डेटा वी विल हैव टू राइट एंड दैट इज ईपीएस. Yes, sir. ऑलराइट. चलो ईपीएस लिखने का जरूर है. हु विल टेल मी? मैं नहीं लिखूंगा तो नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर. तो लिखना पड़ेगा. व्हाई? क्योंकि कभी इक्विटी फ्यूचर वगैरह वैल्यू नहीं कर सकते. यस इक्विटी वगैरह में चेंजेस हुआ तो ईपीएस में पता चल जाएगा सर. करेक्ट. कभी इक्विटी बढ़ जाती है. देखो जैसे अभी मैंने कल ही रिजल्ट अपडेट किया HUL का, हिंदुस्तान लीवर. राइट. देयर प्रॉफिट हैव ग्रोन बाय अराउंड आई थिंक सो, मैं भूल गया अभी, 7 to 8%. बट स्टिल देयर ईपीएस हैव फॉलन बाय 2%. ऐसा क्यों हुआ बताओ? They increase the equity, sir. GlaxoSmith merger. As their equity have grown due to the buying of Glaxo shares. Very good Shaila madam, you are going on a right path. उन्होंने जो कंपनी खरीदा, due to that reason their equity have grown, and hence despite their profit have grown, their equity has, their EPS has fallen. अब आप एस्टिमेट लेके चलोगे मेरा प्रॉफिट बढ़ने वाला है HUL का, तो गड़बड़ होगी कि नहीं? राइट. So this is the reason. Always write EPS. So here also I will write down EPS. Let me put it here. Can you see here? 18.68 is the EPS. Yes. This here. 18.68. And the EPS for last year was 21.67. उंगलियां ज्यादा फास्ट चलती है. 21.67. Okay, so Control C, Control V. देखो थोड़ा सा फर्क आ रहा है, 13.6 और 13.8. ऐसे तो इतना भी फर्क नहीं आना चाहिए. Why little bit there is a difference? शेयर होल्डर्स का जो कंट्रीब्यूशन रहता है उसमें डिफरेंस आएगा. इंटरेस्ट उनका कुछ कम होता है. क्या कम होता है? इंटरेस्ट का कुछ मींस नॉन कंट्रोल्ड इंटरेस्ट का कुछ शेयर आता है. इंटरेस्ट वाला नहीं सर. देखो ये क्या करते हैं ना, जो मैनेजमेंट में ड्यू टू दोस पीपल कंपनी हैज मेड गुड प्रॉफिट, दे विल गिव सम शेयर्स टू मैनेजमेंट कि आप डायरेक्टर हो, लो 500 शेयर, वी विल गिव यू सम शेयर बिकॉज यू आर डूइंग गुड थिंग. राइट. तो थोड़ा थोड़ा हर साल इक्विटी इंक्रीज भी होता है, थोड़ा थोड़ा, जिससे ये फर्क भी पड़ता है. राइट. ना इट्स गुड. सी मैनेजमेंट को अगर ये
इफ दे विल नॉट फील लाइक पार्टनर, तो टीसीएस फिर इतना अच्छा बढ़ेगा भी नहीं, ये लॉस हमें चलेगा, राइट? बट Okay. मैनेजमेंट शुड फील दैट दिस इज देयर ओन कंपनी। ओके, एक Okay. चीज और ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड करें बताओ आप लोग? व्हाट वी विल ऐड अपार्ट फ्रॉम ईपीएस? Margin. मार्जिन, है ना? मेरे को हाँ, पता रहना चाहिए कि मेरी कंपनी का मार्जिन बढ़ रहा है कि घट रहा है। हाँ, ओके, सो दिस इज द Yes, sir. मार्जिन। लेट मी डिक्रीज डेसिमल। टीसीएस का मार्जिन कितना है? yes, इसका 18 point, yes, sir. या सो टीसीएस मार्जिन हैज फॉलन और ग्रो? Fallen. फॉलन है ना, इस बार इनके मार्जिन कम हुए हैं। सो सी, दिस इज योर क्वार्टर वन डेटा। राजेंद्र भाई, सी व्हाट आई Yes, डू, if there is depth, then I will even insert here finance data, ताकि मेरा ध्यान रहे फाइनेंस पे। All right? yes, sir. हाँ, No हाँ, depth, it's all right. I have not taken that. I have not considered depth. अब क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए। Now I will try to estimate कि okay, their sales have grown by only 0.5%. अब क्या हाँ. करो? We will go again to result. Right? Can you see here what is this 375? 375 दिख रहा है आप लोगों को? paid up equity share capital, sir. यस सर, दिस इज पेड अप इक्विटी है। मतलब कितना इक्विटी है कंपनी का? 375 करोड़। Yes, sir. Our TCS on equity of 375, they are making profit of 33,000 crore. It हाँ. shows they are making 10 टाइम नहीं, कितना Yes. प्रॉफिट कर रहे हैं इक्विटी से? Around 9 100 times. टाइम, Okay. है ना? Yes, yes. तो दिस इज हाँ. ह्यूज वेल्थ क्रिएशन। टीसीएस ने जबरदस्त पैसा कमा के दिया है। Hmm. Now what is this? 84,000 करोड़ क्या है? The reserves. हाँ? These are Reserve. the total reserves. Yes, sir. Yeah. So every year TCS make profit. अब इस साल हाँ. 32,000 करोड़ का प्रॉफिट किया पिछले साल टीसीएस ने। Yes. इन्होंने डिविडेंड कितना बांटा? आर यू अवेयर अबाउट इट? 5 rupees अभी. ये तो अभी ये क्वार्टर में बांटा। देखो ये 18 रुपया जो मिला ना, उसमें से हाँ. 5 रुपीज दे हैव Five, okay. announced। 73 rupees, sir. या सी हियर यू कैन रीड, इन्होंने लिखा ना Okay. Yes, sir. interim dividend. Can you हाँ. see here? Yes, 5 sir. rupees Yes, sir. dividend they have announced. हाँ. तो इधर लिख Yes. भी दिया है। तो Yes, sir. 19 में से 5 was dividend. तो देखो इधर आपको मिल जाएगा कि नहीं, कितना डिविडेंड Yes. बांटा? हाँ. Can you see? Yes. 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 Yeah, Yes, sir. last year their earning was 86 rupees. They distributed 67 interim dividend, Yes. 6 rupees final dividend, and the total dividend was how much? 73 rupees. 73 rupees. Yes. All right, clear Yes, है sir. इतना? Now, Yes, sir. if they have distributed 73 rupees out of 86 rupees, can you tell me how much dividend they distributed last year? Almost Approximately? 85%. 85%. 85%. Absolutely. Right. अब I will like to disclose to everybody, जब क्वार्टर वन का रिजल्ट आया था उसी समय हमने कह दिया था कि दिस ईयर टीसीएस विल गिव यू अराउंड 7 to 75 rupees dividend. How we were able to know that this year we are going to receive 70 to 75 rupees dividend? पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से उनका हैबिट है इतना परसेंट का। हाँ, देखो अभी उनका हैबिट इतना नहीं है। अब तक उनका हैबिट 50% था, मतलब 86 में से वो 43 रुपीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते। पर उन्होंने मैनेजमेंट के कमेंट में लिखा था पिछले साल कि नाउ फ्रॉम दिस ईयर वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट 80% इन द डिविडेंड। हाँ, हाँ. Yes, sir. इधर लिखा था, अभी जो हम नीचे कमेंट पढ़ेंगे ना उसमें। Yes, sir. तो देखो ये सब डेटा आपको बाहर से मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। That is the reason. See, वो पढ़ो, भले आपको ज्यादा टाइम होता है, राइट? Yes, sir. हमें लोगों की तरह एक दिन में सब काम करने की जरूरत नहीं है। एकदम शांति से धीमे धीमे रिजल्ट को पढ़ो ताकि हाँ. you will able to know those data which people do not know, Yes, right? sir. So see, here you have reserve part, here you have dividend part, everything you are aware.
ओके, लेट मी Yes, sir. स्क्रॉल इट डाउन. अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? Consolidated. Segment information. See, Yes. I will like to again point out to you, this was part 1. Hmm. Financial statement was part 1. This is part 2. Can you see here part 2? Yes. Yes, So sir. what information is given in the part 2? बताओ मेरे को, कौन बताएगा? What is given in part 2 and is this important or not? सेगमेंट वाइज बाइफरकेशन करके दिया है उन्होंने कि किसमें कितना बिजनेस आता है, कहाँ से. Absolutely. Yes sir, absolutely. What you have to do, पता है आपको? आप जो भी कंपनी का रिसर्च कर रहे हो, आपने HUL का रिसर्च किया है, राइट डाउन फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग बिजनेस. आपको पता चलेगा. कभी कभी क्या होता है पता है? फॉर एग्जाम्पल, वी थिंक दैट एग्जाम्पल को सोचने दो. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट फेल हुआ HUL का. ऐसा आया कि दिस प्रोडक्ट वाज नॉट गुड. फेयर एंड लवली ले लो, नाम बदलना पड़ा. फेयर नाम नहीं, कुछ और करना पड़ेगा हमें. एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, योर कंपनी हैज फेल्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ऑब्लिगेशंस आए, सुप्रीम कोर्ट में केस आया, अपने कंट्री में केस चलेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बेचने देंगे तुमको. एट दैट टाइम आपको ये काम लगेगा. यू विल एबल टू नो कि कितना Yes, sir. धंधा दे रहा है. अब मान लो जिसपे केस चल रहा है उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है धंधे में, देन यू शुड वरी. Yes, sir. But if the product which you are seeing here is having majority of their stake, then you should worry. तो घबराने का जरूर है. तो ये डेटा हमेशा कहाँ डालने का पता है? यू शुड कीप दिस डेटा राजेंद्र भाई इन योर sir. स्प्रेडशीट. या नीचे क्या करो, एक लिस्ट बना दो इस चीज का. हाँ. कि भाई Yes, sir. from where they are getting the business. So now you know, they get their business from banking, financial service. Yes, कितना sir. आता है पता है वहां से धंधा? हाँ. 1.5 15 लाख to 8. करोड़ में से Yes, sir. सबसे ज्यादा धंधा कौन दे रहा है? हाँ. Banking यही and डायरेक्ट. finance. या दिस पीपल आर गिविंग देम ह्यूज बिजनेस. देखो ये क्वार्टर में भी किसने धंधा दिया है? यहीं से धंधा Yes, sir. आया है ना. अब Yes. मान लो ये सेक्टर में मंदी आती है, हाँ. तो इफेक्ट किधर आएगी बोलो? For net result, net revenue, because that contributes almost 40%. Yes, sir, Yeah, of the बट total revenue. मैं किसकी बात कर रहा हूँ सर? वो सेक्टर है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग दिस 15,000 Hmm. और मैन्युफैक्चरिंग आजकल अच्छा नहीं कर रहा है. ऐसा हाँ. कुछ आया कि नाउ मैन्युफैक्चर में मंदी रहेगा आने वाले 1 साल तक. हाँ. तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां तो गिरेगी, उसके साथ हाँ. और कौन गिरेगा? TCS, IT भी गिरेगा. IT, हाँ. IT गिरेगा. Yes. इफ मैन्युफैक्चरिंग Service इज providers. कंट्रीब्यूटिंग मेजर बिजनेस, आपके केस में ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? बैंकिंग, फाइनेंशियल Banking सर्विस, and financial service. है ना. Yes. कितना कंट्रीब्यूशन है? 50% कंट्रीब्यूशन है. तो ये ज्यादा Yes. कंट्रीब्यूशन है. हाँ. ये Yes, लोग sir. क्या करते हैं? दे आर डाइवर्सिफाइंग देमसेल्फ. ये धीमे धीमे बाकी सेगमेंट पे फोकस करते हैं ताकि ऐसा हो कि कोई एक सेक्टर में मंदी आए तो भी TCS को असर ना हो. Yes, sir. जैसे आप लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हो अलग अलग इंडस्ट्री में, यू इन्वेस्ट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. वाई? ताकि कोई मंदी आए तो आपको असर ना हो. तो देखो TCS भी तुम डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है. Yes, गॉट sir. इट? Yes, दिस sir. इज इंपॉर्टेंट डेटा. हर कंपनी का आपको ये पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर कंपनी की सेल्स कौन से सेगमेंट में से आ रही है. ये आपको बाहर से मिलेगा? नहीं, sir. नहीं मिलेगा. Hmm. राइट. नाउ दीज आर नॉर्मल थिंग यू कैन रीड. मैं पहले सब पढ़ता था. देखो Yes, इधर sir. इन्होंने डिटेल दिया हुआ है. एपिक सिस्टम 2014 में इनके ऊपर एक लीगल क्लेम आया था जो कोर्ट में चल रहा है मेडिसन डिस्ट्रिक्ट में. राइट. हाँ. हाँ. Now, Yes. हाँ. अचानक कल आएगा देखो कि ऐसा हाँ. आया कि केस हार गया TCS. हाँ. फॉर हाँ. एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, सही में नहीं. Yes, मान लो yes, sir. TCS हार गया तो TCS को नुकसान कितना होगा? इधर लिखा है Yes. डैमेज. हाँ. राइट. अब Yes, sir. मान लो कोई केस है, उतना नुकसान नहीं है तो फिर आपको लाइटली ले सकते हो. नहीं तो लोग तो क्या है ना, 1000 करोड़ के नुकसान में भी शेयर बेच देते हैं.
उनको लगता है Yes. टीसीएस का हिस्सा लॉस आ जाएगा, हाँ राइट? हाँ So this whole thing हाँ. can help you. Okay, Yes sir. Yes, thank you at sir. least we can read in those company. ये सब पढ़ने का जरूर नहीं है, ये सब तो हाँ. जो अकाउंटेंट्स है जिन्होंने इनका रिपोर्ट बनाया, ये उनके कमेंट है जो बाय लॉ इनको लिखने पड़ते हैं। मैं Yes, लिखता sir. हूँ कि नहीं लिखता हूँ हर बार? डिस्क्लोजर पीयूष पटेल बोलता है वैसा मत करना, है ना, क्योंकि हाँ. सेबी बोलता है बोलना पड़ेगा, हाँ. ऐसे Yes, उनको sir. भी बोलना पड़ता है। नाउ दिस इज अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, नो नीड टू सी इट, जस्ट डाउन हाँ. स्क्रॉल इट, these are same things. Okay, now this is very important. ये क्या है सर? Yeah. This is management comment. Yes, हमेशा yes. the company where you invest now, read this thing, Yes, sir. right? TCS demonstrates operational resilience while positioning for growth recovery. देखो ये जो डिटेल जो पूरी इन्होंने लिखी है ना, इतनी है। Yes, sir. राजेश गोपीनाथन कौन है? ही इज सीईओ ऑफ दिस कंपनी, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। हाँ. उन्होंने पूरे में ये लिखा है। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने देखा जैसे टीसीएस का रिजल्ट आया, आईटी गेव ब्रेकआउट, इन्फोसिस चलने लगा, इन्फोसिस के रिजल्ट अच्छे आए, विप्रो हाँ. जिसके तो मैंने बहुत बरसों से अच्छे रिजल्ट नहीं देखे, उसके अच्छे हाँ. रिजल्ट आए। हाँ. कैन यू रीड दिस राजेंद्र भाई? अगर आपको Yes, दिख रहा है प्लीज Yes, yes, I खाली can इतना read. पढ़ो। हाँ. यस प्लीज। Yes, sir. Yeah. Rajesh Gopinathan, Chief Executive Officer and Managing Director, said the revenue impact of the pandemic played out broadly along the lines we had anticipated at the start of the quarter. It affected all verticals, with the exception of life sciences and healthcare, with varying levels of impact. We believe इतने का मतलब समझा सकते हो राजेश भाई? What he was trying to tell you? this revenue impact इसका pandemic का broadly played out broadly along with the lines we had उनको anticipate किया था, and it has by and large been taken care of. Yeah, see Rajendra bhai, during last quarter when result have announced, they have written हाँ. कि हमें थोड़ा फियर लग रहा है आने वाले समय में क्या होगा, तो वही बात Yes, इन्होंने रखी है कि लास्ट क्वार्टर में हमने ऑलरेडी ये बात रखी थी कि वी Yes, मे sir. सी इफेक्ट एंड सी वी Yes. हैव सीन इफेक्ट, राइट? Yes. यस प्लीज आगे। हाँ, it affected all verticals, मतलब सभी verticals में अब इसका effect हुआ था, with the कौन से exception of वर्टिकल है life. इनके राजेंद्र भाई? विच वर्टिकल दे आर हैविंग? बाकी आगे के जो अपने बताए थे अपने रेवेन्यूज जहाँ से आते हैं, यस, कौन से? हमने मैन्युफैक्चरिंग देखा, मैन्युफैक्चरिंग, हमने यस, हाँ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस देखा। दिस ऑल आर देयर डिफरेंट सेगमेंट्स और अलग अलग Yes, sir. वर्टिकल्स होते हैं। कौन से वर्टिकल से कितना बिजनेस आएगा, दिस आर देयर टारगेट, राइट? यस, हाँ, यस पर सर. एक एक्सेप्शन है, कौन सा? लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर. तो आपको इधर से ही पता चल जाता है कि फार्मा तेजी करेगा, लाइफ साइंस बढ़िया है, बायोकॉन, हाँ, समझ में आ गया? यस सर. हाँ, इन्होंने सब जगह मंदी देखी, पर इनको लाइफ साइंस और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में तकलीफ नहीं पड़ी, तो आपको sir. भी नहीं पड़ेगी, यस सर. राइट? हाँ, विद वेरिंग लेवल्स ऑफ इम्पैक्ट। ये पढ़ो अभी आखिरी लाइन सर। हाँ, with varying levels. So we believe it has bottomed out, and we should now start tracing our path to growth. They think the इसका worst. मतलब बताओ। They think the worst is over. Worst is over now, and now we can expect a rally, good growth. एब्सोल्युटली। तो ये पढ़ के एवरीबॉडी कुड कम इन कॉन्फिडेंस It is, sir. कि Definitely, वाओ, sir. अगर टीसीएस का ये सीईओ बोलते हैं तो हम इन पे विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने Yes, sir. पहले खराबी में खराबी बोली है। ये झूठे लोग नहीं है कि कुछ भी बोल दो। दे आर ट्रस्ट पीपल। इन्फोसिस है, ये सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं, राइट? Yes, sir. सो दे बिलीव दैट इट हैज बॉटम्ड आउट और हम लोग ग्रोथ देखेंगे। आप पूरी चीज शांति से पढ़ लेना। Yes, इन्होंने sir. लिखा है हमें थर्ड क्वार्टर से जबरदस्त रिकवरी दिख रही है, तो आप भी Yes, समझ जाओ Yes, थर्ड sir. क्वार्टर से हम लाइफ टाइम हाई सब में देख सकते हैं, Yes, sir. राइट सर? Yes. तो दिस थिंग यू विल नॉट गेट, ये खाली स्क्रीनर फ्रीनर खेलने से, मनी कंट्रोल के डेटा देखने से कभी पता नहीं चलेगा, Yes, है ना? sir. कम पढ़ो, हाँ. कम एक्टिव रहो, लेकिन फोकस्ड एक्टिव रहो, राइट सर? Yes, sir. I thank you very much. I learnt a lot from you, sir.
and I'm learning. Thank you very much, sir. Yeah. Thank Okay. you, sir. So here Thank you, your data is also completed. अब Yes, देखो हमने डायरेक्ट डेटा नहीं डाले राजेंद्र भाई, हम Yes, क्या sir. कर सकते थे पता है, इधर डायरेक्टली हम क्या कर सकते थे, लेट अस पुट 0.5% सेल्स ग्रोथ, 13% डी ग्रोथ ऑफ हाँ. इन प्रॉफिट. अब हाँ. रिजल्ट पढ़े आपने, हाँ. अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि पहले क्वार्टर में हाँ. एक महीना whole country was in lockdown, whole world हाँ. was harassed. Still, Yes. if TCS can give 0.5% growth, हाँ. अगर पूरा साल उनको मिल गया तो वो हाँ. यहाँ पे क्या करेंगे? Yes, sir. -10, हाँ. 0.5 और they can give 10% growth. बताइए सर. Yes, sir. Yes, sir. I'll get 10% growth हो सकता है, sir. या आप 5%, 10% अपने हिसाब से एज्यूम करो, Yes, sir. किसी हाँ. की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो, Yes, और sir. वो फिगर इसमें डाल दो. Yes, sir. Right? Just put it here, 5% हाँ. growth. Yes, Now sir. ये किसका एस्टिमेशन है? ये राजेंद्र भाई का एस्टिमेशन, राइट? Yes, sir. पुट इट हम्म. -13% प्रॉफिट है ना, पुट इट 0 ईयर कि Yes, sir. चलो अभी -15 है, 1-2 क्वार्टर चलते चलते मैं आशा रखूंगा कि हाँ. ईपीएस एंड प्रॉफिट विल बी नॉट नेगेटिवली अफेक्टेड, इट विल बी फ्लैट. Yes, sir. फिर एस्टिमेट करो अब मैं टीसीएस का क्या करूं. Yes, sir. ऑल राइट. Mhm. Yes, sir. अब आपने अगर 0% ग्रोथ एस्टिमेट किया है राजेंद्र भाई, Yes, sir. क्वार्टर 2 के रिजल्ट कब आएंगे बताओ? Q2 would be in 3 months आफ्टर, 3 महीने बाद आएंगे. yes, sir. दैट टाइम September. या तो आप अपने आप को शाबाशी दोगे या हम्म. यू विल फील ओ माय गॉड मैं फेल हो गया, मैंने Yes, sir. सोचा ऐसा नहीं हुआ. हाँ. तो अगर आप सक्सेस होते हो हाँ. एंड यू विल एबल टू लर्न मोर थिंग, बट इफ Yes. यू विल फेल, हाँ. if you will fail, then you will हाँ. learn thousands of new things. आपको पता Yes, sir. चला कि कैसा एस्टिमेट करना चाहिए, Yes, sir. राइट? हाँ. आप इसी प्रकार से अगर एस्टिमेट करते गए, मुझे बताओ राजेंद्र भाई, 2 साल हाँ. बाद आपका एस्टिमेशन कैसा होगा? Yes, sir. पक्का much होगा कि better. नहीं एकदम? Yes, sir. या Much better. हम लोग सोचते हैं ये हाँ. धोनी कैसे इतना बढ़िया खेलता है, ये कैसे इतनी बढ़िया बॉलिंग करते हैं, ये कैसे हीरो इतना बढ़िया एक्टिंग करता है. अरे उसने हाँ. कितनी बार बेचारे ने किया है, और Yes, sir. हमको क्या है ना कि 1 ही महीने में मास्टर हो जाने का हाँ. हाँ. है कि Yes, नहीं? sir. हम्म. तो बस ट्राई करते जाओ. ये जो Yes, sir. एस्टिमेट आप अपना लिखोगे, इट विल बी हम्म. हेल्पफुल टू यू आने वाले समय में. एस्टिमेट Yes, प्लस sir. माइनस करते जाओ. हाँ. देखो Yes, sir. एफआईआई ने जो एस्टिमेट किए, हमने हम्म. देखा अभी जैसे कल ही बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया, आपने हाँ. देखा आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू से बजाज फाइनेंस घुमा है. जब हाँ. बजाज हाँ. फाइनेंस टूट रहा था, कल ही प्रशांत खरे हैज अपडेटेड बजाज फाइनेंस रिजल्ट. Yes, sir. Exactly, it is shown you U-turn from intrinsic value. तो FII sir. ने तो पहले से इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के रखा था कि भाई यहीं से घूमना चाहिए. लेटेस्ट रिजल्ट डालने के बाद बात कर रहा हूँ. हाँ. हाँ. इसका मतलब क्या कि FII का प्रेडिक्शन परफेक्ट था, इसके Yes, प्रॉफिट इतने टूटेंगे. हाउ दे वर एबल टू प्रेडिक्ट परफेक्ट? हु विल टेल मी? अब सब में से मैं आप सबको पूछ रहा हूँ. FII ने HUL का प्रेडिक्शन किया, they predicted about Reliance, they predicted about DMart. वो लोग क्यों इतने सही होते हैं और हम लोग क्यों इतना परफेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाते? Who will tell? Yes, please, anybody? Yeah, संपत जी, past experience 100% सही बात है आपका. You are absolutely right. ऐसा नहीं है उनके पास हाई फाई कंप्यूटर है. नो. यस अरुण त्यागी जी, एस्टिमेटेड ग्रोथ, वो लोगों को अनुभव हो गया है. नाउ दे आर एबल टू प्रेडिक्ट. जो हमें लेना है, जो आप में से हर एक व्यक्ति, एवरीबडी फ्रॉम यू विल गेट दिस एक्सपीरियंस इन कमिंग 1 and 2 years. तो ये आदत को छोड़ना नहीं, राइट? आप में से जो लोगों ने ये अपडेट नहीं किया है, प्लीज अपडेट. इफ यू विल नॉट अपडेट राइट नाउ, तो आप 1 साल बाद तो नहीं करोगे, है ना? दिस इज अ हैबिट विच वी विल हैव टू फॉलो. सो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा,
We all should clap for Karan Raj. ताली होनी चाहिए कि नहीं करण राज के लिए? Yes, sir. राइट, बढ़िया, एकदम शाबाशी दे दो सब लोग करण राज को। वंडरफुल करण राज, आपने जो किया बेहतरीन किया। राइट, दिस इज द वे। राइट, प्रशांत खरे आप भी हो ना ग्रुप में? प्रशांत जी के लिए भी जबरदस्त तालियां हो जाए। वी नीड अप्लॉज फॉर प्रशांत जी। व्हाई? बिकॉज यू आर ट्राइंग। इफ यू आर ट्राइंग यू आर गोइंग टू फेल। अरे हम चाहते ही है कि हम फेल हो, because if we will not fail, how we will improve? Right, sir? बराबर राजेंद्र भाई? Yes, sir. Yes, sir. So this was the way how you were supposed to put your data. मैं चाहूंगा आप सारे लोग देखो, आप लोगों को मैं चाहता तो last week I would have given you all the videos and I would have completed this workshop, but no, जब तक आप quarterly exercise नहीं करते we can't go further. Up quarterly result now they are announcing, so you are supposed to do this exercise, क्योंकि आप ये करोगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। Right? I will request everybody to do this quarterly exercise because ये आईना है 2021 का। याद रखना मेरी इस बात को। 90% इन्वेस्टर को अगले साल जुलाई में पता चलेगा कि टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आए। आपको अभी से पता है कि आईटी के रिजल्ट अच्छे ही आने वाले हैं। व्हाई? ड्यू टू क्वार्टरली रिजल्ट। या तो अगले साल जागो, तब तक शेयर 3 गुना हो गए होते, या तो क्वार्टरली रिजल्ट देख के एडवांस में अनुमान लगाओ। राइट सर? Yes, sir. ऐसा टाइम आएगा रिजल्ट देखने की जरूर नहीं होगी। आप पहले से बोलोगे ये ऐसा रिजल्ट देने वाला है और वैसे ही रिजल्ट आएंगे। बराबर कि नहीं? Yes, sir. टीसीएस से आपको इंफोसिस का अंदाजा आना चाहिए था। हाँ, इंफोसिस से आपको विप्रो का अंदाजा आना चाहिए। डीमार्ट शुड टेल यू कि फ्यूचर ग्रुप इस बार लॉस करने वाला है। डीमार्ट के रिजल्ट जान के आपको पता चलना चाहिए शॉपर स्टॉप आर गोइंग टू मेक लॉसेस दिस ईयर। डोंट Yes, sir. वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ शॉपर स्टॉप। पता चला एफआईआई कैसे एडवांस में कोई भी शेयर में बेच देते? एस्टिमेशन। राइट Yes. फ्रेंड? Yes, sir. ओके, हाँ. तो धन्यवाद राजेंद्र भाई का। Yeah, चलिए। thank you. Thank you. Yeah. Thank you, sir. We will able to do this exercise and I will Yes, sir. request everybody please complete your quarterly updation in your respected sheet. Right? अब मैं हाँ. और एक चीज पे आना चाहूंगा। करण राज जी, you are able to unmute yourself? हाँ, yes sir. Good evening sir. Yes. Good evening करण जी। करण जी, Good evening sir. क्वार्टर 1 के रिजल्ट हाँ जी. आपने डाले, क्या आपको हाँ जी. चैलेंजेस आए, क्या प्रॉब्लम आया, और आपने डालने के बाद आपका कॉन्फिडेंस में प्लस हुआ कि माइनस हुआ, कैसा रहा बताइए? नहीं, कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया सर। ओके, पर डेटा आपने इसी सर, प्रकार से लिए? हाँ यस। हाँ जी इसी प्रकार से कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट से रिजल्ट में जाकर वहीं से लिए। और एक सीक्रेट बताऊं करण भाई? हाँ जी बोलिए सर। सीक्रेट, हाँ यू बताइए आर सर। फ्रॉम हैदराबाद ना? हाँ हैदराबाद। जी हाँ जी हाँ जी। ओके, वो दिन दूर नहीं है जब आपको हैदराबाद में ही कोई आप ही की शीट बेचने वाला है। ओके। समझे? आपको कोई आप ही की शीट भेजेगा, देखो देखो ये किसी ने भेजा है रिजल्ट इसका, करण ले तेरे को काम लगेगा। हाँ? अच्छा। आप ही की शीट गोल गोल घूमेगी हैदराबाद में, ऐसा होगा। लोगों को पता नहीं है किसने बनाया है। शीट क्या है ना, मेरे को मेरी शीट कहीं बहुत बार आती है अलग अलग ग्रुप में से। राइट, तो ये होगा आपके साथ। ओके सर, एक चीज पूछना था, कहिए। जैसे फाइनेंस कॉस्ट में आपने बताया है कि लीज अमाउंट भी आता है, तो फिर एग्जैक्टली आईसीआर कैसे पता चलेगा? आपका आवाज नहीं आ रहा है करण, आपका आवाज बंद हो गया। यस हेलो। यस नाउ यू आर एबल। हेलो, आ रहा है सर आवाज? आ रहा है। ये फाइनेंस कॉस्ट में लीज अमाउंट इंक्लूड किया हुआ है ना अभी? करेक्ट, बहुत सही जाना आपने। तो फिर उसका हमें एग्जैक्टली आईसीआर कैसे पता चलेगा?
करेक्ट, या डेट वर्सेस इक्विटी वगैरह देखना है साथ में? एब्सोल्युटली। देखिए, इस चीज पे मैं थोड़ी क्लियरिटी करता हूँ। सिंस लॉन्ग टाइम ओके सर। मैं मेरे ख्याल से 10 एक साल से ये सारे रिजल्ट अपडेट करता हूँ। So when I was updating result, I was looking only ICR, और मुझे ICR से पता चल जाता था डेप्थ कितनी है, because during that time lease was not included in their finance। लेकिन ये इंक्लूड किया, ये बहुत अच्छा किया। इंक्लूड करने से एक फायदा हो गया। See, for example, जुबिलेंट फूड के सर पे कोई डेट नहीं है, राइट? पर जुबिलेंट फूड की कितनी सारी रेस्टोरेंट्स है, वो सब रेस्टोरेंट कैसे है? लीज पे ही होगी ना, वो खरीदेंगे हाँ तो जी। ना इतनी सारी रेस्टोरेंट। हाँ हाँ जी, हाँ जी। अब वो भी तो उनका कॉस्ट है, ओके। है कि नहीं है? कम हाँ से जी। कम 20 साल दे नो आई हैव टू पे दिस मच लीज अमाउंट टू माय ओनर। ओके। तो हमें पता रहना चाहिए कि ये लायबिलिटी है, और ऐसे प्रॉब्लम के समय ये लायबिलिटी भी देखनी काम लगती है। ओके। तो सरकार ने ठीक। क्या किया, नए इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से दे हैव इंक्लूडेड लीज इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अभी इस ओके। साल से आप देखोगे सब कंपनी का फाइनेंस बढ़ गया। तो सही में फाइनेंस नहीं बढ़ा है, लीज अमाउंट आया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप अगर आईसीआर अभी भी देखोगे, राइट, यू विल हैव टू बी क्लियर हियर कि जो सेक्टर का आप आईसीआर देखते हो, स्टिल यू कैन कंपेयर योर सेक्टर्स आईसीआर। जैसे लेट मी गिव यू एक, ओके। जितना भी कंपनी आपके रेस्टोरेंट सेक्टर में है, कोई भी कंपनी ले लो, बर्गर किंग हो, जुबिलेंट फूड हो, या आपका कॉफी डे हो, सबका एक ही मॉडल है। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी हाँ जी। सेम मॉडल। सब लोग लिस्ट पे प्रॉपर्टी लेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो इफ यू विल चेक आईसीआर ऑफ ऑल द कंपनीज, आपको कंपेरेटिव पता चल जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। चलेगा कि नहीं पता? हाँ, पता चलेगा सर। सेम थिंग इन टीसीएस। देखो, आईटी की जो कंपनियां होती हैं, उनकी भी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये सब क्या कहते हैं, हमारा धंधा रियल एस्टेट का नहीं है। हम क्या करते हैं, वी टेक प्रॉपर्टी ऑन लीज। तभी तो हम एक्सपांड हो पाएंगे। हमें इतने सारे स्टेट में या कंट्री में अगर हमारी ऑफिस डालनी है, कितनी जगह प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे? कोई एक आधी हेड ऑफिस ही हम हमारी खुद की ले सकते हैं। एवरीवेयर एल्स वी विल हैव टू टेक प्रॉपर्टी ऑन लीज, राइट? तो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, ये सब कंपनी एक जैसे मॉडल पे चल रही है। सो यू कैन हियर ऑल्सो कंपेयर आईसीआर, बट आई विल हैव टू टेल यू, आईसीआर से प्योर डेप्थ अब पता नहीं चलेगी। चलेगी पता? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। तो चलो मेरे को बताओ, अभी मैं कैसे जानूं, हाउ टू नो व्हाट इज द प्योर डेप्थ ऑफ एनी कंपनी? डेट वर्सेस इक्विटी में? सी, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो अच्छा कि आईसीआर अच्छा? क्या मुझे काम लगेगा भविष्य में, बताइए। एक्चुअल में तो आईसीआर अच्छा रहेगा सर। लेट मी रीड इन कमेंट ऑल्सो। किसी ने लिखा है, संपत जी ने लिखा है आईसीआर। देखो, आईसीआर अब तक अच्छा रहता था, पर अब लीज एड हो गया है, तो इधर थोड़ा झोल है कि नहीं है? हाँ जी। थोड़ा प्रॉब्लम आ गया कि नहीं? हमारे लिए नए इनकम टैक्स के नियम में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो आपने देखा करण जी, इन माय हाँ जी। लेटेस्ट रिजल्ट वेरेवर आई हैव अपडेटेड, आई हैव पुट डेप्थ डेटा। मैंने हाँ हर जी, जगह पे डाल दिया। डेप्थ डेटा डाले हैं। हाँ जी, मैंने वीडियोस भी देखे हैं, उसमें भी डाले हैं आपने। तो मैं पहले नहीं डालता था, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं थी। मैं क्यों कोई भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड करूं? पर अब मेरे को डेप्थ के डेटा डालने पड़ते हैं, बिकॉज आईसीआर में डेप्थ की क्लियरिटी 90% हो जाती है, 100% नहीं होती। अब तक होती थी, ओके। राइट? तो अब डेप्थ कहां से देखेंगे? आपने बैलेंस शीट में। तो बहुत बढ़िया सारे में डेप्थ लिखा हुआ है आपके, मैंने शीट देखी। यस, आपने, यस एब्सोल्युटली, बैलेंस शीट। मुनीर, आपने भी लिखा है बैलेंस शीट। चलो टीसीएस की खोले बैलेंस शीट। कहां से खोलेंगे? फाइनेंशियल्स यस में प्लीज। जाकर कैसे खोले? एनुअल रिपोर्ट में, एनुअल
एनुअल रिपोर्ट में, फाइनेंशियल्स में। फाइनेंशियल एनुअल हाँ जी। रिपोर्ट में। ओके, चलिए एनुअल रिपोर्ट में भी देख सकते हैं या डायरेक्टली हम रिजल्ट में भी देख सकते हैं? देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? रिजल्ट में नहीं मिलेगा ना बैलेंस सर? शीट मिलेगी? मिलेगा आपको? नहीं, नहीं मिलेगी ना। मिलेगा मिलेगा। अच्छा, देखो रिजल्ट जो आपके है उसमें आपको 3 चीजें दी जाती है। कौन सी चीजें? 1, 2 and 3. 3 most important things are updated in result. What is number 1 thing which is updated in result? इनकम, Financial statement. इंक या फाइनेंशियल इनकम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपडेट किया जाता है। अभी आप लोगों ने जो देखा डेट वाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरी, यस विरल, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो अपडेट होती है दैट इज बैलेंस शीट। ओके। और तीसरी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज रिजल्ट में आती है। अभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे, अभी हमको खाली डेप्थ जानना है, तो वी विल ओपन बैलेंस शीट। ये जो रिजल्ट अभी आपने देखा उसमें बैलेंस शीट थी क्या यहाँ पे? नहीं सर, इसमें कोई कोई देता है, कोई नहीं देता, मैक्सिमम तो नहीं देते हैं यू सर। आर एब्सोल्युटली राइट। इधर कोई कोई देता है, कोई कोई नहीं देता है। इधर है, देखो इन्होंने दिया हुआ है, हाँ जी, दिया है, डिटेल दिया एसेट्स एंड इन्होंने, इधर लिएबिलिटीज दिया हुआ है। दिया हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ हम कैसे हाँ जी, जाने दिया है। कि इनकी लायबिलिटीज कितनी है, कितना इनके सर पे लोन है? दिस इज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दिस इज, थोड़ा छोटा कर देता हूं, यस बताइए तो इसमें कहाँ लिखा है? इसमें ये टोटल इक्विटी के नीचे, इक्विटी एंड लिएबिलिटी है ना सर, उसमें नीचे एक्चुअल में इसमें डिटेल ये करंट लिएबिलिटीज एंड इधर नॉन नहीं, करंट एसेट में नहीं लिएबिलिटीज। आएगा। यस, एसेट में नहीं आएगा सर करण भाई, नॉट इन नहीं एसेट। नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं सर, वो एसेट नहीं है, लिएबिलिटीज है ना, डेट। राइट, क्यों ये डेट एसेट नहीं और लिएबिलिटीज ये में आएगा लायबिलिटी सर, है? करेक्ट करेक्ट। सी, क्योंकि हम दे बैलेंस शीट आपका 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, वन इज एसेट राइट एंड वन इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है? एक तो शेयर होल्डर फंड इज ऑल्सो लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी में लिखा जाता है क्योंकि ये किसका है? हम सबका है। कितना है शेयर होल्डर फंड? 84,000 करोड़, राइट। तो बुक वैल्यू कैसे निकाली जाती है? यहीं से निकाली जाती है ना। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। ये करंट लायबिलिटी क्या है करण जी? जो 1 साल के अंदर जो पेमेंट हमें करने का होता है उसका है। करेक्ट करेक्ट। तो 1 साल के अंदर का जो प्रोविजन है या लायबिलिटी है वो करंट में आती है। हमें देखनी पड़ेगी नॉन करंट लायबिलिटीज। कौन सी देखनी पड़ेगी? नॉन करंट लायबिलिटीज। यहां पे इन्होंने मिक्स डेटा दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। कितना है? 8,311। 8,000 करोड़। ये हाँ जी। प्रोविजन क्या है करण भाई? ये जो आगे के खर्चे के मींस जो एक्सपेंसेस आने वाले हैं उसका प्रोविजन बना के रखते हैं। अभी हमने देखा एक केस चल रहा है, हाँ जी, मेडिसन के कोर्ट में। हाँ जी, 7,000 करोड़ की लायबिलिटी है उसकी, है ना। अगर हाँ जी, भरना पड़ा तो हाँ 7,000 करोड़ भरना पड़ेगा ना। भरना So here पड़ेगा। they इन प्रोविजन, राइट। ओके, सो हाँ जी, लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, यहाँ पे इतना क्लियर फाइनेंस शब्द इन्होंने नहीं लिखा है, राइट। पर आप हाँ जी, अगर जाओगे रिजल्ट में, एनुअल रिजल्ट में, वहां पे जरूर आपको लिखाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज में कॉलम होगा फाइनेंस। वहां से पता ओके। चल जाएगा कि कितना फाइनेंस है, राइट सर। किसी किसी में बोरोइंग लिखा हुआ, कॉलम से, यस सर, क्या बताया? किसी में बोरोइंग लिखा हुआ रहता है तो वो अमाउंट होता है कि वो नहीं होता है? यस 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 यस, बोरोइंग की फिगर भी ले सकते हो, वो भी वही हुआ ना कि भी उन्होंने ओके, कितना बोरोइंग किया हुआ है, ठीक राइट। ठीक है, ओके। यू कैन टेक योर डेब्ट फिगर फ्रॉम दिस ऑल प्लेसेस। अब आपने जो बोला नॉन करंट और करंट, अभी कुछ हाँ जी, कंपनी ऐसी है करण भाई जो हाँ, अपना डेब्ट नहीं पे कर पा रही है,
ओके उनके केस में तो करंट लायबिलिटीज में ही आ गया होगा फाइनेंस, क्योंकि वो तो दे अच्छा ही नहीं पा रहे, इस साल का भी देने का, पिछले साल का भी, 2-3 साल का इकट्ठा होके इसी साल सब देने का आया है, राइट। हाँ तो हाँ कुछ जी उठी हुई कंपनी का रिसर्च करेंगे तो वहां पे आपको करंट में भी दिखेगा, पर अभी आप ओके उठी हुई कंपनी का तो रिसर्च करने वाले नहीं हो। राइट अच्छा बराबर कि नहीं? हाँ जी हाँ जी राइट, सो गुड गोइंग, वेरी गुड। चलिए, तो करण जी, आपने जो रिजल्ट पूरे हाँ अपडेट किए, ये हाँ जी पूरा रिजल्ट जो भी डाले आपने, और क्या चीज आपको जानकारी मिली जब आपने रिजल्ट अपडेट किए? कुछ इंटरेस्टिंग थिंग आप लोगों से शेयर करना चाहोगे? हम्म, इसका बजाज फाइनेंस अच्छा, का इनको किया है करने मैंने। चाहिए नहीं करने चाहिए? हाँ करने चाहिए सर, कि सबको सभी को करने चाहिए, करना चाहिए ना। इसी से मैंने आज अपडेट। हाँ प्रशांत उसी भाई से को एक कमेंट लिखा था, मैंने प्रशांत जी को एक मैंने कमेंट डाला था आज, प्रशांत भाई, कि भाई आपने यहाँ पे 2030 के जो डेटा जो लिए हुए, राइट, देखो ये डेटा में भी ऐसा है, राजेंद्र भाई के डेटा जो मैं देख रहा हूँ करण भाई, उसमें हाँ 2030 के डेटा में एस्टिमेशन में उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है पिछले साल का रिजल्ट, राइट। अच्छा हाँ तो जी इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, आप बता सकते हो? 2030 में तो एक नंबर हाँ, ऑफ इयर्स, तो 2021 से करें तो हो जाएगा ना सर, 9 इयर्स। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। इनको क्या करना पड़ेगा अभी? दे हैव टू डू, दे हैव टू कट इट 10 एंड विल हैव टू राइट डाउन 9। और हाँ जी 2020 अभी भूल जाओ, अभी हम 2021 में हैं, यही डेटा ले लो, एक्सपेक्ट करो कि यस, दिस ईयर टीसीएस इज गोइंग टू थ्रो 1.7 लाख 70 लाख करोड़ टर्नओवर, अब 2030 कैसा, राइट सर? क्लियर है? ठीक, हाँ जी हाँ तो जी एक मिस्टेक थी, छोटी सी मिस्टेक थी, जिसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। ठीक, ठीक है सर। ओके, तो गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। मैं उम्मीद रखूंगा आप अपनी इस हैबिट को कंटिन्यू करते जाओगे। ओके, ओके सर। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू अपडेट योर Q1 data, right? Here, let me move towards your last spreadsheet which you all have updated. I will request everybody to update your data. आपके भाव लेने के लिख देना इधर। मुझे बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव रिटन दैट आई विल बाय एट 50 मेमा, क्या लगता है आपको, आपकी कंपनी 100 मेमा नहीं आ सकती है, टूटेगी? नहीं सर, हमने वो हिसाब से ही 50 मेमा लिखा है ना सर, के उसके आसपास ही चल रहा हो, काफी क्या? टूटेगा तो ही 100 मेमा आएगा, अदरवाइज तो वहां से वो करेक्ट, वापस बाउंस करेगा। करेक्ट। लेकिन आपने 50 मेमा पे लिया, एंड देन इफ योर रिजल्ट्स आर स्टिल नॉट इंप्रूविंग, तो क्या होगा करण भाई? तो अपना ये बाइंग लेवल चेंज हो जाएगा सर। 100 मेमा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ तो आपको आएगा आएगा लगेगा सर। पीयूष भाई मैंने तो ऊपर ले लिया, अभी तो ये 100 मेमा, माय शेयर इज कमिंग, नाउ व्हाट विल हैपन? इट्स ऑल राइट यार, you have bought during fall, 50 mema is was also good place, you should add more near 100 mema, है कि नहीं? हाँ जी अब आप मेमा की भाषा देखो, आप रिट्रेसमेंट की भाषा देखो, आप कोई भी भाषा देखो, लेना कब है शेयर? फॉल में, राइट? हाँ बात जी तो क्लियर है कि नहीं है? सर एक चीज पूछना था कि ये यस, जैसे अपन बोलते हैं ना करेक्शन, ये करेक्शन या कब समझ में आता है? जैसे ये तो रोज अप डाउन ऐसे चलता, कभी बढ़ता है कभी एक दिन कम होता है, तो हमें करेक्शन पीरियड कैसे पता चलेगा सर? मंथली चार्ट में आपको करेक्शन पीरियड पता चल जाना चाहिए। देखो मतलब मैं बताता हूँ तीन आपको, चार महीने। हाँ जी यहाँ पे मैं एक चार्ट लिख देता हूँ। ओके, राइट, हाँ जी शुरू।
शुरू से ओके आपका। ओके, दिस वाज योर rally from 2004 to 2008, right? हाँ जी Any हाँ जी point of time, any point of time, हाँ whenever your share breaks previous month low, please concentrate. प्रीवियस मंथ low. Whenever your share breaks previous month low, be alert. कितना महीना रैली किया? 1 2 3 4 5 6 7 8. Every month what your share was making, इसे कहते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। जब भी अगले महीने का लो टूटे, सीधा अलर्ट हो जाओ। योर कंपनी और निफ्टी कुड एंटर करेक्शन मोड, और ये करेक्शन रह सकता है 2-3 महीना, 1.5 साल, राइट। ये केस में आपका करेक्शन कितना चला? इधर पहली बार दिख रहा है ना आप सबको? आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 month rally, your share broke previous month low. करेक्शन मोड में निफ्टी आया, 1 2 3 4 महीना रहा, तो 4 महीना में कितना दिन आता है करण भाई? 4 महीने में हाँ जी दिन कितने? ऐसे वर्किंग तो 100 दिन हो, इस 100 डेज के आसपास हो गया, पर 120 हम दिन तो हो गए शेयर ऐसे। बाजार की भाषा में बात करेंगे। शेयर बाजार की कितने दिन? एक महीने शेयर में 20 बाजार दिन, की 20 दिन तो 80 डेज, 80 डेज। 80 अब दिन। बताओ मेरे हाँ को, जी 80 डेज, हम एक दिन हमारे शेयर को 10% गिरता हुआ नहीं देख सकते। आपको पता है आने वाले 80 दिन खराब जाने वाले हैं। हाँ जी जब भी निफ्टी अगले महीने का लो तोड़े, गेट अलर्ट। आने वाले 2-3 महीने बिगड़े समझो। जब तक कि ओके निफ्टी हायर हाई हायर लो वापस नहीं लगाता है, तो लोग क्या करते हैं? व्हाट बिग इन्वेस्टर डू, वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं ताकि नीचे आए तो उसको खरीद सके। दिस इज कॉल्ड एज ओके करेक्शन। ये निफ्टी करेक्ट हो रहा है। अगेन देखो, यहां पे तो फ्लैट ही रहा, यहां पे निफ्टी ने लो लगाया, फिर क्या हुआ? कितने समय? 1 2 3 4 5, 1 2 3 महीने तक निफ्टी करेक्ट रहा, फिर तेजी, वापस 1 2 3। इससे आपको क्या समझ में आता है कि निफ्टी का जब भी दिमाग घूम जाता है, हाउ मेनी मंथ निफ्टी गेट्स करेक्टेड? 3-4 एटलीस्ट महीने। 2 to 3 मंथ, हाँ जी 2-3 महीने, मतलब 50-60 दिन तो बेकार जाएंगे अपने, राइट? तो यू शुड बी अलर्ट कि वाओ, मेरे बाइंग करने का टाइम आने वाला है। क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू बाय ओनली ड्यूरिंग करेक्शन, ये रैली में बाय करोगे क्या? ड्यूरिंग दिस रैली यू आर गोइंग टू बाय? नहीं डोंट सर। बाय। अब आपको पता है, देखो हर 5-6 महीने बाद आपको मौका मिल रहा है, तो क्यों जल्दबाजी करने की? ये जो आप देख रहे हो ना, ये ह्यूज रैली है इंडिया की 2003 से 2008 की, जिसमें लोग जबरदस्त कमाए। वो रैली में भी एवरी आफ्टर 4-5 मंथ योर निफ्टी वाज करेक्टिंग, और लोग मेरे को बोलते निफ्टी कभी नीचे ही नहीं आता है। कैन यू तो सी सर दिस? इसका हाँ जी, यस। तो इसका मतलब ये हमें सिर्फ निफ्टी देखने से पता चल जाएगा कि हमारे शेयर्स अब करेक्शन में आएंगे नहीं आएंगे, या हर शेयर डेफिनेटली को भी देखना निफ्टी है? इज इंडिया। हर आपको शेयर डाउ को देखने जोन्स की जरूरत देखने नहीं से है? दुनिया पता चलती है। अब डाउ ओके जोन्स देखोगे, आपको दुनिया पता चलेगी। इफ ठीक। यू विल सी इंडिया निफ्टी, आपको अपने सेक्टर पता चल जाएंगे। अब निफ्टी अगर यहाँ 2-3 महीना करेक्ट हो रहा है ना, लेट मी थ्रो अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। इफ निफ्टी इज करेक्टिंग फॉर 2-3 months, आपकी आउट परफॉर्मिंग कंपनी जो जबरदस्त रैली कर रही थी, वो क्या करेगी? वो भी That will correct, आराम sir. मोड में आ वो भी जाएगी, वो टूटेगी नहीं बहुत। या दैट विल करेक्ट टिल दैट रिट्रेसमेंट, 50 मेमा तक आ जाएगी, 23% रिट्रेस करेगी, है ना, पर आराम करेगी। पर सबसे पहले रैली कौन करेगा पता है आपको? योर आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स। निफ्टी ने यहां पे नया हाई लगाया, आपका आउट परफॉर्मिंग सेक्टर पहले से हाई लगा के चल चुका होगा। यही समय पे
अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर ये 3 महीने में क्या हुआ होगा बताओ मेरे को। एनीबडी फ्रॉम ग्रुप, इफ योर सेक्टर इज अंडर परफॉर्मिंग और निफ्टी में 3 महीने की मंदी आई, बोलो क्या होगा तो लेस देन 50%, सेक्टर का? लेस देन 50% Almost हो गया 60 होगा। सर, वो 60 पहले हाँ महीने 61% आता हो जाएगा। replacement हाँ या एब्सोल्युटली, वो पहले 61% टूटेगा। replacement निफ्टी लो लगाएगा ना, उससे पहले ही आपके वो सेक्टर मंदे होने को लगते हैं। Those sectors will be bearish in advance, वो पहले टूटेंगे, वो ज्यादा टूटेंगे, वो लंबे समय तक टूटेंगे। निफ्टी इधर से वापस रैली करने लगा, आपके वो वीक सेक्टर रैली कब करेंगे पता है? जब निफ्टी यहां आ चुका होगा तब। That is the reason stay invested in growing sectors and in top quality companies. नहीं तो जब अगले समय की बरसात आई तब कुछ लोग घर के बाहर निकलेंगे, बराबर है? दिस इज कॉल्ड एज करेक्शन करण। हियर ओके सर, हाँ जी हाँ ये जी करेक्शन लंबा करेक्शन था कि नहीं? हाँ जी। आपका निफ्टी कंटिन्यू 13 महीने टूटा था और निफ्टी वॉज इन अ लॉन्ग, दिस होल फेज वॉज करेक्शन। ये पूरा करेक्शन फेज बोलते हैं। जब तक निफ्टी नया हाई नहीं लगाता है ना, तब तक ओके, दिस होल फेज इज करेक्शन। अच्छा अच्छा, From 2008 to 2014, your Nifty stayed 6th year in correction. How many years? अच्छा 6 years. Still, some sectors get rallied after 2 years. वो सेक्टर को हम क्या कहेंगे? Outperformer. Absolutely. जिधर पैसा आ रहा होगा ना, where there would be demand, those sector would be rallying first. Again, याद रखो, डायरी में लिख दो इसको, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर पहले रैली करेंगे, लंबी रैली करेंगे, ज्यादा रैली करेंगे, लेट टूटेंगे। वीक सेक्टर पहले टूटेंगे, दे विल रैली लेस, दे विल फॉल फॉर मोर टाइम एंड दे विल रैली फॉर लेसर टाइम। दोज आर अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर। तो दिस इज रिकवरी। इसको क्या कहेंगे आप करण भाई? दिस इज रिकवरी। इसको रैली नहीं बोलेंगे। हाँ जी, योर निफ्टी रैलीड फ्रॉम 2400 to 6000. Still you can't say this was rally. This was recovery. रिकवरी। रैली किसको बोलते ओके, पता है? This is rally. जो पुराने ये को तो जो ब्रेक रिकवरी करेगा था। उस, या हाँ ये फिर क्या आया वापस? दिस वॉज करेक्शन। देखा आपने? हाँ जी अब ये हाँ करेक्शन जी, कितने समय के लिए आया? 1.5 साल के लिए आया। कैन यू सी दिस थिंग? यस सर, 2 साल तक ये करेक्शन रहा। हाँ सो बी जी, प्रिपेयर। आपको ठीक हर कुछ समय के बाद करेक्शन आएंगे, राइट? अगेन ठीक ये भी ठीक, करेक्शन चल रहा है। कितने समय से चल रहा है? सिंस 2018। हमने 30 हाँ महीने जी बिता दिए, है ना? हाँ जी, अब अभी जो चल रही है, राइट नाउ निफ्टी इज रैलिंग वेरी गुड। हम इसे रैली कहेंगे कि करेक्शन कहेंगे? Who will tell me? रिकवरी कहेंगे? इसको एक्चुअल में तो रिकवरी बोलेंगे ना सर। यस, क्योंकि निफ्टी टूटा 5000 पॉइंट 2 महीने में। रिकवर होने में 4 महीने लगे। निफ्टी कितना रिकवर हुआ है अभी? अभी 75% रिकवर हुआ है। यार रोज मैं लिखता हूं डेली इंडाइसिस में, वीकली में, एवरी मंडे आई राइट, आई एम राइटिंग 75%। हाउ? इट्स वेरी सिंपल। देखो ये मैंने डेली कर दिया है। ओके, दिस इज रिट्रेसमेंट। उल्टा रिट्रेसमेंट कर रहा हूं मैं देखना चाहता हूं टूटा कितने समय में और रिकवर हुआ कितने समय में। 78.6% तक की रिकवरी हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो जस्ट सोचो, निफ्टी 46 डेज में टूटा और रिकवर होने में इसने कितने दिन कंज्यूम कर लिए? 80 डेज। डबल दिन, बट स्टिल वी हैव रिकवर्ड ओनली 80%। मतलब मैंने आपसे ₹1,00,000 उधारी ली थी, आपको खाली 80,000 हाँ वापस किए। आप खुश हो?
नहीं सर। हाँ, मैंने बोला था कि 1 महीने में दे दूंगा, डबल महीना हो गया। हाँ खुश हो? नहीं सर। राइट, ये बात। ओके, सो दैट इज व्हाई वी विल से दैट वी आर इन रिकवरी मोड। दिस ऑल मोड्स आर ओके चैलेंजिंग मोड। ये रिकवरी मोड है ना, ये पूरा करेक्शन हाँ चल रहा है 3 साल से। ये समय पे माल ओके इकट्ठा कर लो जितना हो सकता है उतना, क्योंकि आप ऐसी रैली देखोगे 6,000 से 12,000 आया था, हम इसी प्रकार से 10,000 से 20,000 देखेंगे निफ्टी। तब तक हो सके उतने शेयर इकट्ठा कर लो। राइट फ्रेंड? ठीक सर। लेकिन Clear? अभी जैसे है ना, काफी अपन जैसे काफी शेयर्स के रेट्स अभी भी अपन कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम रेट में मिले तो लेना है। लेकिन ये अभी हाँ, जैसे ये तो करेक्शन बराबर। मिस रिकवरी बताओ चल कौन रहा सा है शेयर? तो हाँ, अभी जैसे कौन सा टीसीएस ही शेयर ले लीजिए। बताओ। अभी अभी टीसीएस ही हम्म, आपने बताया 1800 अपन ने लेना है अप्रोक्सीमेट, या और अभी करेक्ट, 2200 के आसपास चल रहा है। राइट। तो ये कैसे हम जब ये रिकवरी तो कंटिन्यू चालू ही है तो फिर 1800 होगा नहीं ना सर फिर? हम लोग जब से इधर चल रहा था ना 2,000 रुपया हाँ ह्यूज हाँ रैली में था, टीसीएस ने यहाँ पे रैली 1200 से 2200 तक रैली किया। सिंस हाँ 2200 इफ एनीबडी वुड आस्क मी आई वांट टू बाय, मैं उसको 50 में मैं बोलता था ठीक। यू शुड बाय टीसीएस नियर दिस लेवल। उसको कब मौका मिला लेने का? कौन से महीने में? अच्छा अभी मार्च मार्च में। 2020। राइट। अब कुछ लोगों ने ओके ले भी लिया था हाई भाव पे, तो वो लोग टेंशन में आ ओके गए, अरे यार ये तो बहुत टूट रहा है पीयूष भाई, अब ये चलेगा कि नहीं। पर इसने मौका दिया। अब इसने मौका ओके दे दिया। मार्च इन अप्रैल मंथ दिस शेयर हैव ट्रेडेड एट 50 में मार्च। तो उस समय हम कहाँ थे? अगर मेरे को आज भी कोई पूछेगा करण जी कि टीसीएस कहाँ हाँ बाय करना चाहिए, मैं तो उसको यही बोलूंगा 1800 पे लो भाई। राइट। अब हाँ जी 1800 पे उसको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता ओके है। 3 महीने पहले बाजार टूटा, तो उसको क्या करना था? लेना चाहिए था। तब लेना था। तब नहीं लिए, तो अब तो आपका नसीब जाने। अब भगवान आपको बार बार थोड़ी ना अपॉर्चुनिटी देगा कि अरे रे रे महेश भाई का लेकर छोड़ के लाओ इसको। ठीक पीयूष भी रोज लिख रहा है बाय एट 1800, लाओ 1800, नहीं होगा ऐसा, है ना। हमें ओके मौके ठीक। मिलेंगे, ऐसे बार बार नहीं मिलेंगे। whenever you get opportunity buy it। now मैं और एक चीज ओह इसकी बताता हूँ। see right now हाँ TCS is still in correction। अभी भी TCS करेक्शन में है। आप में से जो SIP कर रहा है करो, 1800 की वेट थोड़ी ना करने की SIP के लिए। SIP ओके people should buy during this whole correction range। कहीं भी बाय करो पर करो, हर महीना इकट्ठा करो। यहां आपको ओके क्या करना था? लेट मी शो यू हियर। यहाँ आपको क्या करना था? ये पूरी रेंज आपकी कौन सी रेंज थी? SIP रेंज थी। आप थोड़ी ना अच्छा ये रेंज की वेट करोगे। देखो TCS ने भी ये मौका दिया, पर जो लोग हर महीना बाय कर रहे हैं एक्यूमुलेट एवरी मंथ, क्योंकि एक बार गाड़ी छटकी ना फिर सीधा ठीक ये 1200 से 22। वैसा इधर भी होगा, बट रैली आएगी तब मत करो SIP। करेक्शन ओके चल रहा है, डू SIP। भाव मत देखना। मैं कह रहा हूं ओके ओके 1800, कोई दिक्कत नहीं। मैं किसके लिए बोलता हूं बताए 1800? जिनको लमसम रुपया डालना है। राइट। अच्छा मेरे को ठीक है। राजेंद्र भाई, आपका उम्र पता नहीं है राजेंद्र भाई, लेकिन मान लो अगर राजेंद्र भाई रिटायर है और Sir, राजेंद्र भाई I'm के 50. पास अभी 25 लाख रुपया है हाँ I'm राजेंद्र जी, 50. आपके Yes, sir. पास I'm बहुत 50. से लोग होंगे ना, कई क्लाइंट्स होंगे जो रिटायर्ड क्लाइंट है। Yes, अब yes, sir. आप वो रिटायर्ड क्लाइंट को रोज बोलोगे डू SIP डू SIP, वो मुंह में क्या बोलेंगे? Yes, sir. अरे किधर से पैसा लाओ, है कि नहीं? तो Yes, वो sir. लोगों के लिए क्या करना है, वो उनको आपको सही भाव बताना पड़ेगा। भाई शांति रखो, आपको मौका मिलेगा। यहाँ मौका मिला था, आपको लेना था 1800। Yes, sir. SIP नहीं कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परफेक्ट Yes, sir. भाव पे लेना पड़ेगा, है कि नहीं? Yes, sir.
Yes, जो I am 57, SIP sir, नहीं by the कर way. रहे, रिटायर लोगे, उनको तो प्रॉपर भाव पे ही लेना पड़ेगा। अब मैं Yes, उनको नहीं कह सकता वो अगेन 1800 आएगा कि नहीं आएगा। मेरे को लगता है नहीं आए, क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं। इन्फोसिस के रिजल्ट अच्छे आए। देखो इन्फोसिस का चार्ट बताऊं मैं, दिस इज इन्फोसिस। क्या लगता है करेक्शन मोड से निकल गया ये तो, इसको बोलते हैं रॉकेट। अब ये चलने वाला है। अब आप किसी को, मेरे को अभी भी कोई पूछेगा कि पीयूष भाई इन्फोसिस लेने क्या करूं, मैं उसको बोलूंगा 2700 आए तो लेना। यहाँ पे तो मौका था उसको लेने का, तब वो कहाँ गया था, जहां था मौका, यहाँ था मौका। अब जब चलने के बाद कोई आएगा तो उसको ना भी मिले, बराबर की नहीं। भगवान बार बार थोड़ी ना मौके देता है, 1 2 3 बार देगा, राइट सर। ये देख के लगता है ह्यूज रैली। सी आई हैव दिस शेयर आल्सो, सेम फ्रॉम सेम इंडस्ट्री LTI। आई एम हैप्पी टू सी, मैंने इधर खरीदा था, अब मुझे भी नहीं लगता है कि इधर आएगा। अब मैं सोचता हूं ये रेंज इसकी खत्म, जिन्होंने इधर बाय किया LTI को भूल जाएंगे, अब नई रेंज बनने वाली है, राइट सर। करण भाई क्लियर हो गया? हाँ, हाँ जी। तो अभी ये जैसे अभी जो रॉक अभी बढ़ गया है, तो वो रेंज में भी अभी बाय करना है या करेक्शन में आएगा तब खरीदना है? कौन सा शेयर? अभी ये जब जैसे LTI, अब जब ये करेक्शन मोड में आएगा हाँ। तब SIP कर सकते हैं, अभी नहीं करना है, अभी रैली मोड में यार है ये। इसने तो कितना लंबा मौका दिया, देखो इतना लंबा मौका हाँ दिया, जी, 27 ठीक। लॉन्ग मंथ। 3 साल से LTI नहीं चल रहा था, तो 3 साल में अगर आप एक एक LTI हर महीने खरीद, आपके पास इकट्ठा हो गए। अब मैं नहीं लूंगा, अब रैली आ रही है, अब मैं दूसरा लूंगा। देखो डीमार्ट करेक्शन मोड में आया है। अब डीमार्ट में कहाँ SIP करते थे, वो तो रैली कर रहा था। अब मैं डीमार्ट हाँ में जी, SIP ये महीना करने वाला हूँ। मंथली लो तोड़ा, दिख रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। डीमार्ट हैव ब्रोकन इट्स प्रीवियस मंथ लो, सो आई विल एक्सपेक्ट डीमार्ट कुड स्टे इन करेक्शन मोड फॉर नेक्स्ट 5 to 6 मंथ। कम से कम उतना तो रहता ही है कि नहीं। देखो इधर लो ब्रेक किया था, डीमार्ट ने किया था। कितने महीने का करेक्शन आया बाद में डीमार्ट में? 12 मंथ, 13 6-7 मंथ। महीने। इधर भी 13 आ months। सकता है कि नहीं आ सकता है, राइट? ठीक ठीक So सर, हाँ जी। now this share is coming in correction. Now I will not do SIP in LTI. अब वो मेरे इकट्ठे हो गए, अब मैं वापस डीमार्ट इकट्ठा करूंगा। गॉट इट? ओके, तो आपको मौके ऐसे ठीक मिलेंगे। ठीक है सर। So now let me go towards conclusion. मैं चाहूंगा आप लोग ये एक्सरसाइज को पूरी करें। बाइंग प्राइस वाली क्वार्टरली रेट अपडेट कर दो, और बाइंग प्राइस मेमा हो, रिट्रेसमेंट हो, एनीथिंग वी नीड टू बाय ड्यूरिंग फॉल, बराबर है। ये पता रहना चाहिए कि आप SIP करने का टाइम आ गया है कि नहीं आया है, व्हाट यू आर सपोज टू डू। अवॉइड करने का टाइम आया कि नहीं, जैसे मेरे लिए LTI अब अवॉइड हो गया, नाउ आई विल नॉट बाय LTI। अब तो वो इकट्ठा हो गए हैं, नाउ इट इज अवॉइड। अब मैं नहीं देखूंगा उसको 1 साल, क्योंकि देखूंगा तो क्या होगा पता है, प्रॉफिट बुक करने को इच्छा होगी, और आप 25% पे प्रॉफिट बुक कर दोगे, 30% पे बुक कर दोगे। 25-30% थोड़ी ना लेने हम इधर आए, 3-4 गुना तो बनता है, बराबर है। भागने दो उसको 3-4 गुना, राइट। सो कंप्लीट योर दिस एक्सरसाइज। हम लोग लास्ट वीक की ओर बढ़ेंगे, और ये वीक, दिस वीक वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर ओन पोर्टफोलियो। बनाना है पोर्टफोलियो हम सबको ये वीक। Everybody? Yeah. यस। So if you want to create portfolio, this week we will create portfolio. हमने पिछले 10 दिन से कोई ज्यादा काम किया ही नहीं, because we were waiting for quarterly result. क्वार्टरली रिजल्ट आए, पूरी प्रैक्टिस कर लो। आपने शेयर नहीं भी लिए तो भी रिजल्ट डालो, दूसरों पे तो प्रैक्टिस करो, फिर पैसा डाल के प्रैक्टिस करेंगे, बराबर है। सो होप नाउ वी विल एबल टू मूव फर्दर। आप में से किसी को कोई क्वेरी है तो मैं आपका डाउट लेने के बाद मीटिंग को एंड कर सकता हूं, राइट? यस प्लीज, इफ एनी क्वेरी
सर एक क्वेरी था। यस बोलो। अ, मुनीर बोल रहे हो? हाँ 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 मुनीर बोलो बोलो। सर, वैसे तो आपने दिखाया यस है कि आप कैसे रिजल्ट चेक करते हो बीएससी में जाके कॉर्पोरेट्स में, पर आप ट्रैक कैसे करते राइट। हो? जैसे हम लोगों के कितने अच्छे अच्छे कंपनीज का भी मतलब होता है पर हम लोगों से छूट जाता है, तो उसके लिए कैसे आप करते हो? एक बार वर्कफ्लो आप फिर से समझा दोगे तो अच्छा रहेगा। बराबर है। देखो मैंने लिमिटेड कंपनियां ली हुई है, पहले तो लिमिटेड मेरे सेक्टर और लिमिटेड मेरी कंपनियां हैं। मैं खाली उनके रिजल्ट ट्रैक करता हूँ। राइट। अब जैसे आप लोगों ने पहले ग्रोइंग इंडस्ट्री बनाई थी, लिस्ट बनाया, तो आपको आपकी ग्रोइंग इंडस्ट्री के जो फ्रंट रनर है ना, उनके तो रिजल्ट चेक कर ही लेने के मुनीर। मैंने कल ही देखा स्पेंसर का रिजल्ट आया है, पर मैंने चेक नहीं किया। मैं क्यों करूं उसका रिजल्ट चेक? मेरे को कोई काम नहीं है। राइट। पर मैंने क्रिसिल का रिजल्ट चेक किया। देखो हो सकता है क्रिसिल आप लोगों के लिए इट माइट नॉट बी इंपॉर्टेंट, बट हमारे लिए वो हमारे जमाने का वेल्थ क्रिएटर था। सो मैनी माय फ्रेंड्स माय इन्वेस्टर इवन आई वाज एक्यूमुलेटिंग क्रिसिल, और क्रिसिल ने जबरदस्त रैली किया था। तो सो मेनी इन्वेस्टर स्टिल हैव क्रिसिल, तो मैंने क्रिसिल का रिजल्ट अपडेट किया। हो सकता है वो आपके काम का ना हो। आपके काम के कौन से सेक्टर है वो आपको पता है। बाइफरगेट योर सेक्टर, सी फ्रंट रनर और उनके रिजल्ट ट्रैक करो मुनीर। बराबर है। कल बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया, बजाज फिनसर्व का रिजल्ट आया, ट्रैक करना ही चाहिए आपको। यही पूछ रहे हो ना हाँ मुनीर? सर, हाँ हाँ वही मतलब, हाँ। जैसे कल आया पर पता नहीं था, पर वो फिर मिलिंद अच्छा अंकल ने डाला तब फिर बाद में पता चला कि अच्छा आ चुका है, फिर बाद में देखा अच्छा। तो वैसे छूट नहीं रहा नहीं था। नहीं 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 नहीं, तो गलती है। देखो क्या करो, मैं यहाँ पे बीएससी इंडिया की साइट ओपन करता हूँ। मेरी डेली प्रैक्टिस है, मैं रोज बीएससी इंडिया की साइट चेक करता हूँ। क्या चेक करता हूँ पता है? मैं गया कॉर्पोरेट में, आई क्लिक्ड ऑन कॉर्पोरेट एंड आई डाउन स्क्रोल्ड। देखो इधर क्या है, आज के रिजल्ट आ गए। आज किसके किसके रिजल्ट है? एलम्बिक फार्मा। वी आर सपोज टू सी दिस कंपनीज रिजल्ट। ना इन्वेस्टमेंट है एलम्बिक में। इवन वी हैव इन्वेस्टेड इन बजाज ऑटो, यू हैव इन्वेस्टेड इन बजाज होल्डिंग। तो ये तीन कंपनी के रिजल्ट तो आज चेक करने पड़ेंगे अपने को। राइट। कल ये चला जाएगा, कल नई कंपनी आ जाएगी इधर, तो इधर से मुनीर ट्रैक करने का। बराबर। ओके सर, ओके। इसके इसके अलावा मान लो चला गया, आज का दिन खत्म हो गया, तो क्या करो? क्लिक दिस फाइनेंशियल रिजल्ट्स। देखो आज के सारे रिजल्ट आ गए। क्रिसिल आया इधर, हाँ क्रिसिल का रिजल्ट हाँ अनाउंस हुआ है। टीवी 18 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। कितने रिजल्ट अनाउंस हुए हैं? जीएनए एक्सेल का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। हैदराबाद सीमेंट। मैं मुनीर एक टाइम में एक कंपनी नहीं छोड़ता था, सबके रिजल्ट है ना देखता था। मैं सबके रिजल्ट में एनालिसिस करता था, क्योंकि मैंने सबकी शीट बनाई थी। पर वो नहीं करने का। क्यों नहीं करने हाँ का? क्योंकि आज मुझे पता चला, अब मैं फोकस्ड हो गया हूँ। मेरे को पता है कि भी हम लोग लिमिटेड कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं। जस्ट चेक दोस कंपनीज रिजल्ट। मैं वो जमाने में क्या करता था पता है? अगर म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का रिजल्ट अच्छा आया तो मैं ये भी ले लूंगा। कल गलती से जीएनए एक्सेल का रिजल्ट अच्छा आया तो मैं भूल जाऊंगा अच्छी कंपनी क्या है। अरे जीएनए का रिजल्ट बढ़िया, उठाओ जीएनए। अरे समझ जाओ, जीएनए का रिजल्ट अच्छा यानी ऑटो पार्ट का रिजल्ट अच्छा। ऑटो पार्ट का रिजल्ट अच्छा तो मदरसन सोनी ना चुप बैठेगी, बॉश थोड़ी ना चुप बैठेगी। राइट। आपको ऐसे ट्रैक करना है सेक्टर ओके सर। वाइज। ओके मुनीर, कर पाओगे ये चीज? हाँ सर, हाँ हाँ, थैंक यू सर। राइट। ओके, सो लेट अस क्लोज टुडेज मीटिंग। और ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट कीजिए और हम आपका पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं। हम नहीं, सॉरी, you all are going to create your own portfolio this week, right? Thanks a lot and Jai Hind to everybody.